And we are live on Facebook, so here we are. Hello everyone, this is Kavita Kapoor Khalsa and we are on Expose episode 31. And today I have another wonderful guest from Ahmedabad, and she's a healer and her name is Anil Shah. So let me, kind of share a little bit about this lady. She's a homemaker. She has 3 daughters, and she's dedicated her life to bringing them up. And she's belongs to a joint family. Okay, आज के दौर पे joint family थोड़ा सा difficult हो सकता है, but yeah, she lived it up because that was her choice. At the same time, she stepped into currently in the last couple of years into healing and contributing to people. So she's very happy that her parents brought her up as a creative healer. And 2017, her journey began, which we'll get to know from her ki kya hai, kya nahi hai. A few modalities like Sai Sanjeevani, Chakra healing, and of course, Access Consciousness is what she's here with. Hello, Anil. Thank you so much for coming on this show. Thank you, Kavita Kapoor, for bringing me up to your stage, Expose, Kavita Kapoor. Yeah, it's just about exposing and bringing out the you that you are. So my first question to you is, what got you into this? So what was life before Access Consciousness, and what changed after you got into Access? So दो हिस्से हैं इसके कि पहले तो आए कैसे इसमें, आपको Access की तरफ रुझान कैसे हुआ? Is what I would like to ask. Okay, there was a get-together, school reunion, Kavita, in 2012, जहाँ पे मुझे एक school buddy से मुलाकात हुई, connecting after 30 years. Wow. And as we get to know each other, कि इतने साल क्या किया, अब क्या कर रही हो, and that's how I got to know a friend of mine. She's from Mumbai, and her name is Rupal Kamdar. And Okay. She was into Access, and she was doing tarot card reading and just out of fun. We had a couple of meetings every year after that school reunion, and that's how I get to know a lot of things from her. And she brought me into Access. 2017 May she introduced 10 tools to me. So as I like just having fun, फोन पे डेली बेसिस पे एक फोन कॉल होता था, एंड नियरली 1.5 month वी हैड 10 टूल्स का पूरा क्लास उसने मुझे दे दिया. 10 keys to total freedom. I think वो हाँ किताब का नाम है. हाँ वो किताब का नाम है, उसी में से she had created something like that, and Wow. ऐसे ही मुझे सिखा दिया, which brought a lot of change in my life, in my nature. So that really gravitated to me learn more from her. She was a facilitator, she was a CFMW, जो अब उसका टाइटल ऐसा है, लेवल 2-3 ऐसा कुछ था, COP ऐसा कुछ. COP करने के बाद वो मिलता है. या बीइंग यू और COP SOP ESB सारा कुछ उसने किया हुआ था, जो मुझे अब पता चला जब मैंने किया कि हाँ मैंने भी किया. सो शी हैड ड्रिल्ड मी, एंड बहुत कुछ एक्सेस में उसने मुझे सपोर्ट किया और कंट्रीब्यूट किया. मुझे जानना 10 कीज से आपको फ्रीडम मिली या नहीं मिली? सारा फ्रीडम मिली. ओके, फ्रीडम में बोले तो आई वुड मतलब this brings us to this question, part of the question कि लाइफ पहले कैसी लगती थी और बाद में मतलब क्या डिफरेंस आपको महसूस हुआ? क्योंकि मैं जानती हूँ आपने मुझे ये जजमेंट, it brought me a lot of out of judgment. जो heaviness था जो माइंड में, वो सारा निकल गया. Every moment become light. It became light after getting 10 tools का जो फ्रीडम बोलते हैं. हाँ मतलब क्योंकि आप देखो, आप जॉइंट फैमिली में हो, बहुत आज की तारीख में ज्यादा जॉइंट फैमिली नहीं, लेकिन है अगर हमें एक साथ मिलजुल के रहने की जरूरत है तो चाह के ना चाह के थोड़ा अनबन, थोड़ा like you don't like this, होता ही है. Yes, difference of opinion में coexistence में थोड़ा बहुत heaviness आ जाता है. So ये है कि थोड़ा बहुत heaviness कभी-कभी carry forward भी हो जाता है, कभी-कभार बच्चों को हो जाता है. और आधी बात तो हमें पता भी नहीं होता कि हमें भारी क्यों लग रहा है कुछ बातों से, क्योंकि हम भुला चुके होते हैं, लेकिन अंदर से तो चोट लग रही होती है. तो बार्स करने के बाद क्या बदला आपके लाइफ में? It was beautiful. पूरी जिंदगी जैसे चेंज हो गई बार्स के बाद. तो
बार्स के सेशंस लेने के बाद स्पेशली मुझे बहुत लाइट लगा और देन आई थॉट ऑफ बिकमिंग अ प्रैक्टिशनर। पहले तो सेशंस लिया मेरे फ्रेंड से, फिर मुझे लगा नहीं मुझे प्रैक्टिशनर बनना है, मैं इससे कुछ और कर सकती हूँ। I gradually became a practitioner और I started giving sessions to my friends over here in Ahmedabad. तो उनकी लाइफ में इतना चेंज आया, फिर they were also willing to step up. That brought me to a level कि मुझे फैसिलिटेटर बनना है। फिर जब आपने भी क्लास लिया था फॉर अपग्रेड करने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छी जर्नी रही फैसिलिटेटर बन के। तो नहीं, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे जो मतलब किसी को आपने दिया हो सेशन, या खुद ही एनी एक्सपीरियंस दैट कुड एम्पावर पीपल और जो इनकरेज पीपल कि अरे ये बदलाव ऐसा भी होता है? जी हाँ, बहुत सारे केसेस है, सारे तो मेंशन नहीं कर पाऊंगी, कुछ लेकिन जो यादगार है वो जरूर करूंगी। यादगार, हाँ, मतलब ऐसा लगता है कि यार ये मेरे को बदलाव लाके खुद भी बहुत प्रसन्नता हुई और दूसरों को भी बहुत खुशी मिली। तो व्हाट इज दैट एक्सपीरियंस? आई वुड लाइक टू नो। एक मेरी डॉटर है और डॉटर की जो फ्रेंड है उसका ब्रेकअप हुआ था और शी कुड नॉट मूव ऑन आफ्टर दैट। तो उसकी मॉम बोल रही थी बेटा आप कुछ करो, एंड शी वाज टॉकिंग टू माय डॉटर। फिर माय डॉटर सजेस्टेड कि आपको मेरी मॉम से बात कीजिए, एंड देन शी केम टू मी, शी कनेक्टेड टू मी। और फिर मैंने उसको सजेस्ट किया आप 10 सेशंस ले लो। Believe me, from the 4th session she was already moving on, but I made it sure कि वो ज़्यादा sessions ले so that it doesn't come up again. Nearly 7-8 उसने लिए sessions within a month, and now she's moving on, flying off to Canada, creating. Oh my God, that's brilliant, that's wonderful. So लोगों, अगर आप ये सुन रहे हो, दिल अगर टूटा है, जो कि टूटता ही है हर एक का, मेरा भी टूटा था, और वो अगर जोड़ने की जरूरत नहीं है, एक नया दिल प्रॉपरली आ जाएगा अगर आप बार्स लेते हैं, बिकॉज इट हेल्प्स यू टू लेट गो ऑफ दोस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ऑफ thoughts, feelings, emotions. That's so wonderful. आपने you really contributed to the youth of today. That's wonderful. तो एक और बताइए, आपका फेवरेट टूल क्या है जो आप यूज करते हैं? What else is possible, ये मेरा एक बहुत ही फेवरेट टूल है। ओके। कहीं भी, हाँ, कहीं भी कोई भी सिचुएशन में जैसे लगता है कि अभी मैं स्टक हूँ, तो सीधा यूज करती हूँ what else is possible। तो इतनी सारी अवेयरनेसेस आती है और अनस्टक हो जाते हैं और दूसरी पॉसिबिलिटीज दिखने लगती है। हाँ, मतलब जो हमने तय करके रखा है कि ऐसा ही होना चाहिए, वो अगर हम छोड़ दें तो हमारे को बहुत और तरीके मिल सकते हैं। बस वो है कि हमारी ओपनिंग या विलिंगनेस होनी चाहिए कि हम वो देख पाए। That's so cute, that's so wonderful. And so where do you see yourself 5 years from now, Anil? मैं चाहती हूँ कि बहुत लोगों को मैं कंट्रीब्यूट करूँ। अगर मुझे कहीं पे कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले कि इंडियन जो क्रिमिनल्स है, जेल्स है, स्कूल्स है, वहां पे कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जो मास पब्लिक को कहीं पे जाके छूता है। और क्रिमिनल जो लाइन है वहां पे जो उनको स्ट्रेस लेवल पे जो ये क्रिमिनल साइड जो एक्शंस लेते हैं, कहीं पे उनका जो इम्बैलेंस है थॉट फीलिंग इमोशंस का, वहां पे मैं कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। सो दुनिया वालों, कहीं पे भी आपका कहीं कुछ कनेक्शन है और आप सोच रहे हैं, तो आई एम दैट पर्सन willing to contribute. लेकिन कितना profound thought है, क्योंकि कभी किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि मुझे क्रिमिनल्स को बदलना है या क्रिमिनल्स को कंट्रीब्यूट करना है। क्योंकि क्या होता है कि क्रिमिनल्स ऑलरेडी एक रिजेक्टेड कैटेगरी में हमने डाला हुआ है कि ये तो सही लोग नहीं है। लेकिन वो सही लोग सही क्यों नहीं है, उसके लिए कोई मतलब मैटर नहीं करता है। सो आपका ये मतलब आपको डर नहीं लगता कि यू नो क्रिमिनल्स? नहीं लगता है, क्योंकि मुझे ये विश्वास है एक्सेस के जो बार्स और बॉडी प्रोसेसेस जो है, ये बंदे की लाइफ चेंज कर लेता है। और मैं चाहती हूँ कि बॉटम लाइन से इसको शुरू करना चाहिए, जो कि मुझे जो 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसमें मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं
ड्रग्स के केसेस में भी सॉल्व हुआ है, अल्कोहल केसेस में भी सॉल्व हुआ है। एडिक्शन के लिए तो बहुत ब्यूटीफुली ये बाहर आता है, बिकॉज बार्स करने से क्या होता है, वो आपके एडिक्शन लेवल्स जरूर कम हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर वो सामने वाला लेने को तैयार है। उन तक पहुंच पाना ही थोड़ा सा कठिन होता है, बाकी एक बारी वो हाँ बोल दे रिसीव करने के लिए सेशन और अंदर से मन वो भी पक्का करे, तो डेफिनेटली मैंने भी देखा है एडिक्शंस तो हल्की हो जाती हैं, छोड़ने तक आप पहुंच जाते हो। और बार्स और बॉडी प्रोसेसेस का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही अमेजिंग है। हाँ, एक जो बंदा था वो हाँ 34 इयर्स का एक बंदा था, हर सुबह को आ जाता था, 6 बजे रोते रोते आ जाता था और चेयर पे आके हमारे हाउस के बाहर बैठता था और कहता था कि कुछ मुझे चेंज चाहिए। और उसको इतना डिप्रेशन, इतना लेवल का डीप डाउन था कि उसका उसका हाथ भी शिवर होता था, इतना शिवर होता था जब भी उसको डिप्रेशन अटैक करता था। नहीं, सो तो वो ड्रिंकिंग में था या एडिक्शन में था या नहीं, बस ऐसे ही? ब्रेकअप प्रॉब्लम था उसका, ओह माय गॉड शादी का। मेरे ख्याल से ब्रेकअप ज्यादा बड़ा एडिक्शन है, बिकॉज वो उसके बाद जो हालत होती है लोगों हालत की, हो गई है। He रिजेक्टेड couldn't मूड get में। over कि why his wife had left him. He was so good looking and the wife was also so beautiful. फिर भी कुछ बना नहीं, कुछ अनबन हुई and he was गुड into लुक deep से अगर पूरी depression. जिंदगी चलती तो बात ही क्या थी, अब नहीं? वो ट्रॉमा जो आई नो, जो दिस जनरेशन थे वो के लुक्स यस, परफेक्टली मैच होते हैं, जिंदगी उससे नहीं चलती है, नहीं चलती, बिल्कुल नहीं चलती, एनर्जी से मस्ती से चलती है। चलती है। अगर दो जन की एनर्जी मैच होती है तो चल सकती है, लेकिन दो जन की लुक्स मैच करने से तो डेफिनेटली नहीं चलती है। तो फिर उनको आपने कैसे उनको फिर एम्पावर किया? उनको 3 सेशंस दिए और 3 सेशन में वो जब घर पे आते थे वो इतना साष्टांग नमस्कार करते थे कि आपने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं मूव ऑन हो रहा हूँ और जब भी मैं दूसरी शादी करूंगा उनको लेके मैं आपके पास आऊंगा। एंड ही लेफ्ट विद दैट हैप्पीनेस एंड ही वाज लिटरली डांसिंग विद जॉय। सो वाह, मतलब बहुत खुशी मिलती है कि हमने किसी देखो की खुद को लाइफ। गूज़बम्प्स आ रहे कि कैसे, मतलब लोग जो हैं अपने अपने नजरिए को, अपने अपने दर्द को कैसे छोड़ सकते हैं कितनी आसानी से। लेकिन लोगों मत करना ये, अगर आपने कर लिया आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, फिर आपके पास रोने के लिए कुछ नहीं होगा। और वो मेरा पहला केस था। जब क्या बात है। हाँ, तो वो बहुत ही एक यादगार केस था कि हालांकि उसमें बहुत सारी मोडालिटीज यूज की थी, लेकिन बार्स के 3-4 सेशंस दिए थे जब वो मूव ऑन हुआ तब। वो तो इवेंचुअली, हाँ हाँ, सो जो क्या होता है, बार जो है वो इनहेंस कर देता है आपकी स्पीड को, कि आप बाकी भी अगर मोडालिटीज उसमें डाल रहे हैं दूसरे सेशंस, तो ये जो है उसकी भी रिसीविंग को ओपन कर देता है। मेन मकसद जो है बार्स का आपकी रिसीविंग को ओपन करना है। हाँ, सो बहुत खूबसूरत आपने शेयर किया। तो मैं चाहूंगी कि आप कुछ शब्द जो लोगों से, अगर क्या कहना चाहते हैं, क्या उनको एक दो शब्द जो आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं, कुछ बताइए। लोगों को मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर आपका दिया जला हुआ है तो रोशनी कहीं और बांटे, और आपका नहीं जला है तो प्लीज जलाइए। and create the light within you, and when your lamp is lit up, please spread the light among the others. वंडरफुल, बहुत बहुत सुंदर बात करिए। और लाइट जलाना हो तो बार्स रन कर लें, क्योंकि उससे Yes, अंदर का दिया जो है वो खूब अच्छे से जल उठता है, या एटलीस्ट दिखाई देने लगता है कि आपका दिया है आपके पास। आपको है, सिर्फ उसको अलाउ करना है कि लोग देख सके। क्योंकि yeah, आज जो इस कॉल से अकम्प्लिश किया है, ये इस दिए को जो ये अहमदाबाद में कहीं पे छुपे बैठे थे उसको भी बाहर उजागर किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं छुपे रहने में हमें आदत पड़ी रहती है और हम दिखना नहीं चाहते हैं। बार्स और बार्स के साथ रिलेटेड और भी उसके अंदर जो जर्नी होती है, फेसलिफ्ट आपने सीखा है, वो कैसे आप भूल सकते हैं? yeah. फेसलिफ्ट भी फेसलिफ्ट का तो मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, क्विक वन, प्लीज। हाँ, वेरी। क्विक। मेरे हस्बैंड को मैंने कम से कम 20-25 दिए होंगे क्या फेसलिफ्ट बात से। है, हाउ He's so लकी। lucky. He's so lucky to have all the sessions. और लिटरली कोई फिल्म स्टार से कम नहीं लग रहे थे जब वो सेशंस ले रहे थे। इतना क्या फेस बात ग्लो हो गया था, वो है। तो ये रोज बिफोर एंड लगता था कि आफ्टर, फेशियल किया है। बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर डालनी चाहिए भाई उनकी। सच में आई मिस्ड आउट ऑन दैट। नहीं, डालनी फेसलिफ्ट चाहिए। मैंने भी अपने हस्बैंड की काफी फेसलिफ्ट किए। मेरा तो ये हुआ कि मेरा बेटे की हाइट इंक्रीज हो गई और मेरे पति जो है उनकी स्माइल बहुत अच्छी हो गई। हार्ट प्रॉब्लम आई
he had a massive heart attack abhi just a month, not even a month ago, but his recovery is so beautiful that I'm so happy to have these body processes with Access. It's amazing, बहुत ही आनंद आता है और कि मतलब वो दुख जी फेसलिफ्ट और बॉडी प्रोसेसेस जो किए उसमें मेरे हस्बैंड की पूरी लाइफ लिफ्ट हो गई है. He has क्या also बात turned into a healer now. वंडरफुल अरे वाह हीलर कपल हो गए आपने अपनी क्रिएटिविटी से उनको भी अपने तरफ खींच लिया मुझे awesome. पुरानी संजीव कुमार की मूवी याद आ गई श्रीमान श्रीमती. हाँ या कि कैसे दो लोग साथ में चलते थे. दो लोग साथ में चलते बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि बार्स के साथ मेरे ख्याल से रिलेशनशिप बेहतर हो जाते हैं जी हाँ. अगर वो इफ यू आर लाइक ऑलमोस्ट ऑन द सेम पेज तो और बेटर हो जाता है अगर थोड़ी ड्रिफ्ट भी आ रही होती है वो भी इम्प्रूव हो जाती है मैंने तो यही देखा है और टूटे हुए दिल जो है वो जुड़ जाते हैं तो ये बहुत बहुत बढ़िया So thank you so much for sharing all your beautiful experiences and having you over was a pleasure and आपका वक्त के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. So बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much. And next week हमारे पास ऐसे ही एक गेस्ट होंगे जो अपनी जर्नी शेयर करेंगे कि कैसे वो दुनिया में बदलाव ला रहे हैं एक्सेस के थ्रू और बाकी जो भी आप करते हैं. तो ये अहमदाबाद में है इनका सेंटर भी है कहाँ पर IIM की तरफ राइट आजाद सोसाइटी में है. आजाद सोसाइटी में इनका सेंटर भी है अगर आपको लगता है कि आपको अपने टूटे हुए दिल का इलाज ढूंढना है यू कैन गो एंड बुक अ सेशन विद हर एंड हैव फन विद योर लाइफ और इतना भी भारी मत करें अपने दिल को कि वो दिल बोझल हो जाए और दिल टूट जाए या दिल का हार्ट अटैक हो जाए प्लीज देयर इज बेटर वेज टू लिव ऑन दिस प्लैनेट. That's it for now. Thank you Kavita ji, thank you so much.